In today's video, I'll give you 4 practical tips in order to improve every aspect of your English language skills, be it reading, be it writing, or spoken English. Now, any language that you learn requires these 3 basic skills, and the suggestions that I'll give you will be a bit offbeat, will require you to be active, and you won't find these kinds of suggestions elsewhere. But I can guarantee that if you do this for 1 month, the next 30 days, if you do these things religiously, you will see a drastic and notable improvement in your language skills. So let's get started. But before we dive into the solutions, we need to clearly identify the problem statement. Now, some of you might be fine with reading English but have problems with writing and spoken English. Some of you might be fine with writing but have problems with spoken English. But all of you, I know, if you're watching this video, will have some or the other problems with spoken English. Now, the idea here is you should be very clear about what exactly do you want to gain out of the practice for the next 30 months. And that's the first step, to clearly identify an area of improvement or an area of clear weakness in your own English skills that you want to work on. Because if you can do that, it clearly sets out a roadmap that you can follow in order to improve. So that's step 1. Now, following immediately on the heels of step 1 is step 2, which is commitment. Without commitment, there is no improvement. And if you're serious about this, right now, go into the comments and let me know what exactly is it that you hope to and aim to improve in the next 30 days. It's a very simple test of your commitment right here and now, because most people watching this video will not comment. They will just continue watching this video and move on from here. But जो कुछ लोग एक्चुअल में इम्प्रूव करना चाहते हैं वो लोग जाके कमेंट करेंगे, एंड फॉर दोज पीपल आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू कम बैक 30 days later and tell me if all of these things that I'm going to share with you really did help or not. Why? Because as this video goes on, as this video ages, your comments will be the ones which will help others improve, because they will come and look at the improvements that you have had, and I can guarantee you that कि 30 दिन तक अगर ये चीज़ें जो मैं बोलने वाला हूँ आपने करी, you will see improvement. So let's get started with the practical tips. Now, the first practical tip. कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि when लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ बंद था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि मुझे बर्तन धोने हैं. Now, बर्तन धोना एक ऐसा वो काम है जो कि मुझे बिल्कुल करना पसंद नहीं है, एंड आई एम श्योर मतलब जो भी कोई करता है, क्योंकि ये काम करना होता है तो ये किया जाता है. Nobody really likes to wash बर्तन, right? So एवरी डे आई वाज स्पेंडिंग 45 to 60 minutes कि भाई बर्तन धो रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब मैं बार बार बर्तन दिन के नहीं धोता था. मैं बोलता था कि भाई सारे जितने भी हो गए इकट्ठे एक बार छोड़ दो, मैं शाम को धो दूंगा. और वो 1 घंटा मतलब मैं अपने आप को कोसता रहता था कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है. काम करना था तो कर रहे हैं, बट यू नो इट वॉज नॉट एन्जॉयबल एट ऑल. That all changed when I realized कि I don't have to be this miserable, and the solution for that was very simple: podcasts. Podcasts are a great way for you to immerse yourself in the language that you want to learn. And मेरे लिए भी यही हुआ कि भाई वो जो 1 घंटे का टाइम था, I started listening to podcasts on history, stories about great conquerors, और जो भी कोई चीज़ आपको पसंद है. Eventually ये हुआ, I started looking forward to कि भाई अच्छा अब बर्तन धोने जाना है, कान में अपना लगाया और 1 घंटे तक कहानी सुन रहे हैं. बर्तन कब धुल जाते थे पता भी नहीं चलता था. And that is what I suggest to you. That is the first practical tip. Find some good podcasts that you like. And that is a very important thing कि आपको वो चीज़ पसंद आनी चाहिए. Random कोई भी मैं podcast suggest कर दूँ तो doesn't mean कि भाई आपको पसंद आएगा. But I will suggest a number of podcasts that you should actually check out. The idea is अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, या किसी भी कारण मतलब कॉलेज इधर उधर जा रहे हो, उस दौरान आप एक पॉडकास्ट सुन सकते हो जो कि आपको हेल्प करे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करने में. क्यों? क्योंकि बहुत बार व्हेन वी लिसन टू इंग्लिश स्पोकन एंड इफ इट इज़ एट आवर लेवल, माने कि एक होती है कि भाई शशि थरूर की इंग्लिश हो गई जो सर के ऊपर से चली गई किसी के भी, बट अगर बेसिक इंग्लिश कोई बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है और एक कहानी के फॉर्मेट में बोल रहा है, तो वी स्टे इंटरेस्टेड एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू ग्रास्प द थिंग्स दैट आर बीइंग सेड. सो कौन से हैं ये पॉडकास्ट? First podcast that I would like to recommend is Speak Better English with Harry. Now all of these podcasts either आपको YouTube पे या Spotify पे मिल जाएंगे. Spotify का free version जो होता है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत ads आती है बीच में, but absolutely free to use. So Speak Better English with Harry
इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट. ये पॉडकास्ट के कुछ 400-500 एपिसोड हैं. एपिसोड 1 से शुरू करो. देन व्हाट वी हैव इज़ इंग्लिश लर्निंग फॉर क्यूरियस माइंड्स. ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं वाइल यूजिंग सिंपल इंग्लिश एंड एट द सेम टाइम एक्सप्लेनिंग कि भाई अच्छा इस शब्द का मतलब क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है. इसके अलावा सम ग्रेट पॉडकास्ट. दिस इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द पॉडकास्ट जो मैंने बहुत सुना था. हालांकि इसमें अब इंग्लिश सिंपल रहेगी बट इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी. और कुछ पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है इसी तरीके का तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्टोरी बेस्ड पॉडकास्ट कॉल्ड द मॉथ एंड वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट फ्रॉम इंडिया विच इज़ निखिल कामत का WTF. ऑल ऑफ दीज पॉडकास्ट आर ग्रेट क्योंकि ये आपको इमर्स करने के लिए अलाउ करते हैं एंड द मोर यू लिसन टू स्पोकन इंग्लिश the better it will be for you in order to grasp these things. Apart from these podcasts, you can also watch your, movies that you like in English language. कोई genre आपको पसंद है तो वो देखो. उसके अलावा Friends जैसे सीरीज़ हैं वो देखो. क्यों? एंटरटेन होते हुए इंग्लिश देखते रहोगे तो इनके सबटाइटल्स चालू कर लो. कि कभी कभार क्या रहता है ना कि भाई बोल रहे हैं जो नहीं समझ आ रहा है बट सबटाइटल्स अगर मैं डाल दूं साथ में तो पढ़ते पढ़ते आई कैन स्टार्ट रिलेटिंग द वर्ड्स टू द साउंड ऑफ द वर्ड्स एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर मी ओवर टाइम. सो टिप नंबर 1, पॉडकास्ट या इंग्लिश लैंग्वेज शोज या इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स चालू करो, विल मेक योर लाइफ ईजियर. नाउ द सेकेंड टिप इज फॉर यू टू रीड. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है या रिटन इंग्लिश इंप्रूव करनी है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बिकॉज बाय रीडिंग यू विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी एंड यू विल सी हाउ पर्टिकुलर वर्ड्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस. एंड इसके लिए इससे बेहतर और कोई किताब नहीं है टू बिगिन विद. नाउ वर्ड पावर मेड इजी इज अ ग्रेट बुक. वाई? बिकॉज आप इसके इंडेक्स में जाओगे तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे इन्होंने सेक्शंस दे रखे हैं या सेशंस दे रखे हैं कि each session is supposed to be done in one day and एक सेशन से क्या रहता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सेशन में आपको 10 से 15 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे एंड एक दिन में अगर आप एक सेशन ये पूरा कर सकते हो तो वो 10 से 15 वर्ड्स आपके दिमाग में छप जाएंगे क्योंकि उनको इतनी बार आपसे यूज़ करवाया जाएगा इन सेंटेंसेज, इन ऑपोजिट्स, कई सारे तरीके से कि 30 minutes इट विल टेक यू एंड इट विल स्टिक विद यू in the long run. So exercise number 1 is immerse yourself in podcast. Exercise number 2 is read more. And Word Power Made Easy is a great book for you to increase your vocabulary. But I understand कि बहुत लोगों को ऐसा dry exercises करना पसंद नहीं होता. तो what I would highly suggest is you pick up a novel or a non-fiction book about a topic that you really want to enjoy. इसमें भी I would suggest some books like The Chip War. Now this is a great book if you're interested in understanding कि भाई मॉडर्न डे जो जियो पॉलिटिक्स हमारा हो रहा है तो भाई चिप्स, माइक्रो चिप्स विच इज़ मतलब पोटैटो चिप्स नहीं, माइक्रो चिप्स कैसे उसके सेंटर पे हैं एंड वाई आर दे सच अ क्रिटिकल रिसोर्स. अनदर बुक दैट यू कैन लुक एट इज नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बाय युवल नोआ हरारी. युवल नोआ हरारी की 3 किताबें हैं, सेपियंस एंड 21st century वाली एक सेकेंड उनकी किताब है एंड दिस इज द थर्ड बुक दैट ही हैज़ रिटन. एनी ऑफ दीज बुक्स great stories that are very easy to read and becomes very very good for you to have fun with. इसके अलावा अगर मैं एक किताब बोलूँ तो there is a book How India Sees the World by Shyam Saran. Shyam Saran जी जो है he is a retired foreign secretary and he has written a great book which is very up to date about India's foreign policy and how it is going to evolve in the future. Now if you're somebody who really likes reading biographies, so this is a great biography book जो कि tells you the story of Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt and Franklin Delano Roosevelt who was American president during World War II and Lyndon Johnson. तो ये 4 American president की lives के through teaches you lessons about leadership. So what are these suggestions for? Suggestion यहाँ पे simply इसीलिए है कि अगर आप वो किताब पढ़ते हो जो आपको interesting लगती है तो it becomes easier for you to stick to it. क्यों? क्योंकि अगर मैं एक difficult subject पढ़ रहा हूँ और उसमें फिर मुझे शब्द भी नहीं आ रहे हैं तो इट बिकम्स डबल द लाइकलीहुड कि आई विल गिव अप. क्यों? क्योंकि एक तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ऊपर से जो बोल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है. इन दीज बुक्स, इवन इन वर्ड पावर ईजी, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, अंडरलाइन इट, वहीं की वहीं उसको अलग से लिख के रख लो, उसका मीनिंग देखो एंड उसको फिर बार बार आप रिव्यू करते रहो. दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट यू विल हैव टू मेक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली टू राइट मोर. एंड राइट मोर, अब बोलने वाली बात है, हर कोई बोलता है कि भाई क्यों लिखे, क्या लिखे, कैसे लिखे. तो प्रॉब्लम कम्स कि भाई उस राइटिंग को रिव्यू कौन करेगा.
The great thing for you right now is, I'm sure most of you have written a message in WhatsApp which was so long कि नीचे वो show more का button आ गया था. If that has been the case, then you're already practicing writing, and that is what I want you to try and do more. दिन में कोई भी एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, बी इट अ मूवी, बी इट कोई सब्जी बनी थी पसंद आ गई, या यू सॉ समथिंग इंटरेस्टिंग, या किसी से कोई इंटरेस्टिंग बात हुई, उसके बारे में एक मिनी ऐसे लिख लो. मिनी ऐसे का क्या मतलब है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट डाउन 200 to 500 वर्ड्स में. देयर इज नो लिमिट. ऐसा कोई यूपीएससी का आंसर लिखने वाली ज़रूरत नहीं है. बट वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज एक्सप्रेस माई सेल्फ एज बेस्ट आई कैन एंड कैप्चर दैट मोमेंट दैट आई हैड इन द डे. एंड अब इसको रिव्यू कैसे कराना है, बहुत सिंपल तरीका है. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप विद योर सेल्फ. नाउ आई ऑब्वियसली हैव 2 मोबाइल नंबर्स, तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों अपने मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं, एंड दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड बिटवीन अस. तो बिटवीन अस में क्या हो रहा है दैट मैंने एक किसी कॉलेज में जाके एक टॉक दी थी, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में मैंने बात करी थी कि आई एम ऑलरेडी लेट. या ऐसा फील होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, या कि भी वेन एवर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी दैट सो मेनी पीपल आर ऑलरेडी डूइंग दिस दैट, एंड मैं पीछे रह चुका हूँ. तो मैंने वो पूरा मैसेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दे दिया. रीड मोर करोगे तो ढेर सारा यहाँ पे और नीचे आएगा, रीड मोर. एंड सो नाउ अब मैंने क्या बोला है, मेटा एआई को विद इन व्हाट्सएप ओनली आई हैव सेड कि भाई आर देयर एनी ग्रामेटिकल एरर्स इन द टैग्ड मैसेज. नाउ ये थोड़ा छोटा रह गया था, तो मेटा एआई ने क्या किया कि भाई उसने पूरा करेक्ट करके मुझे दे दिया. तो फिर मैंने बोला कि भाई हाईलाइट द स्पेसिफिक एरियाज वेयर यू हैव मेड एडिट्स और वेयर यू फील कि सम इम्प्रूवमेंट नीड्स टू हैपन. तो इम्प्रूवमेंट क्या उन्होंने बता दिया कि भाई अच्छा ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ग्रामर में थोड़ा सेंटेंस के बाद लोअर केस से अपर केस कर दिया. यहाँ पे क्लास एक्स एट 16 ईयर्स, मतलब माइनर चीज़ें जो भी थी वो उन्होंने चेंज करके इम्प्रूव करके यहाँ पे बता दी. एंड दैट इज़ सॉर्ट ऑफ द आइडिया दैट एवरी डे आई वॉन्ट यू टू राइट 1 मिनी ऐसे. मिनी ऐसे इज़ एनी वेयर फ्रॉम 100 to 500 वर्ड्स. आपको ज़्यादा लिखना है ज़्यादा लिखो, कोई लिमिट नहीं है ऐसी. एंड सेंड इट ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप दैट यू हैव विद योर सेल्फ, and ask Meta AI कि भाई point out where there are grammatical errors so that you can learn and improve right there. कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. Right where you are, because WhatsApp तो I'm sure everybody is using over here, and if you're not using WhatsApp, I'm sure Telegram पे आपको कुछ ऐसे bots मिल जाएंगे जो कि आपको ये help करेंगे करने में. The idea is you have to immerse yourself in the language every day with podcasts, read more, improve your vocabulary, and now write more. Every day एक मिनी ऐसे लिखने में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. मुझे क्या पसंद आया आज के दिन में, जब मैं फ्लो में लिखता हूँ, जब मैं एंथू में लिखता हूँ, it doesn't take me long, because I'm sure all of you have written these long messages to your friends एक बारी में खटाखट करते हुए. बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता. तो right now what I've given you is about 30 to 45 minutes का task list for the day for improving your English. Coming to the 4th tip, finally how to improve spoken English. यहाँ पे भी AI tools का हम काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, and the idea over here is कि बहुत बार हमें झिझक होती है कि भाई किसी और के सामने हम इंग्लिश बोले, क्योंकि हमें लगता है हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है. एंड ऐसे में टू एक्सपोज योर सेल्फ टू दी आइडिया कि भाई कोई और आके बोल दे भाई कैसी अंग्रेजी बोल रहे हो, मतलब तुमको आती भी नहीं है तो क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो. एंड मजाक बनाते हैं लोग, क्योंकि लोगों का काम है ये नहीं देखते लोग कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो. बट दैट इज़ व्हाट सोसाइटी इज़. सो इन ऑर्डर टू बाईपास ऑल ऑफ दोज इशूज़ कि भाई मुझे सामने किसी के नहीं बोलना जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्या करें कैसे करें, ऐसे में आते हैं हमारे AI फ्रेंड्स विच इज़ ChatGPT एंड Perplexity AI. ChatGPT एंड Perplexity AI की एप्स आपको डाउनलोड कर लेनी है, एंड दीज एप्स विल लुक लाइक सॉर्ट ऑफ दिस ऑन योर स्क्रीन. एंड इन एप्स को बस अब खोल के हमें बातचीत करनी है. आई विल गिव यू अ सैम्पल ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक. Hi ChatGPT, can you help me out with my conversations? Absolutely. I'd love to help. Go ahead and share your sentences, and I'll assist you with any corrections or suggestions. Okay, so this is the sentence which I wanted to talk. Today, I wake up in the morning to study. Then I read the precedent chapter in polity subject, and I write notes from that. Then I meet my friend for a tea, and we talked about socialism. Great effort. Here's a slightly corrected version.
Today I woke up in the morning to study. Then I read the previous chapter in my political science subject and took notes from it. After that, I met my friend for tea and we talked about socialism. Keep it up. इस तरीके से आप परप्लेक्सिटी के साथ भी ऐसे ही बात कर सकते हो एंड जनरली दे विल हेल्प यू आउट बाय पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक्स एंड एरर्स. नाउ जो फ्री वर्जन इनका रहता है जनरली वहाँ पे 30 मिनट्स पर डे का लिमिट रहता है, बट आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस एट एनी गिवन पॉइंट आपको करना भी पड़ेगा. अगर 30 मिनट चैट जीपीटी के साथ, 30 मिनट परप्लेक्सिटी के साथ अगर आप बात कर सकते हो, एंड दिस विल बी अ वेरी गुड लाइव सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस विदाउट यू गोइंग आउट इन पब्लिक एंड ट्राइंग टू फाइंड कि अच्छा कोई मुझे मिल जाए जो मेरे साथ बात कर ले, जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती थी. तो विद दीज AI टूल्स यू कैन प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश एज वेल. नाउ ये स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है, दिस ऑल्सो इफ़ यू कैन डू 30 मिनट्स अ डे, तो 1-1.25 घंटे का आपका दिन का करिकुलम है. अगर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो दैट some 30-40 minutes for word power made easy to improve your vocabulary. रास्ते में कहीं जाते हुए या कोई काम करते हुए अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो दैट, एंड देन फाइनली 30 मिनट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस इफ़ यू आर डूइंग विद चैट जीपीटी. एंड बीच में मतलब जब भी किसी दोस्त से बात कर रहे हो, कुछ एक लंबा मैसेज लिखा, कुछ लिखा, तो जस्ट गेट इट करेक्टेड विद मेटा AI, कुछ 1 मिनी essay ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वांट. अब बोलने को 1-1.5 घंटे का काम मैंने दे दिया है, but that's what you have to keep in mind, that improving your English language skills will require some conscious effort. It will not just happen automatically. Which brings me to the last point that I wanted to discuss. कि after you do this for 30 days, and if you follow this for 30 days, I can guarantee you 1-1.5 घंटा अगर दिन में आप लगा रहे हो for improving your spoken English, you will see results. And I want you to then come back and comment in this video कि क्या आपको improvement feel हुआ. तो यहाँ पे करना क्या है, लॉन्ग टर्म गोल में 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. नंबर 1, so long as you are constantly translating what you are thinking into English will always feel slow and difficult. होता क्या है कि हम हिंदी में या whatever language is your mother tongue, you think in that and then you translate that in your head to English, and whenever somebody is speaking in English, so then you translate that first back into your mother tongue, which makes it difficult for us to naturally talk in English. तो लॉन्ग टर्म में हमें करना क्या है, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. तो दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ डायलॉग फ्रॉम द मूवी टशन. एक मतलब बहुत पुरानी अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड करीना कपूर की एक मूवी थी जहाँ पे सैफ अली खान प्लेज अ इंग्लिश टीचर एंड अक्षय कुमार एकदम देसी आदमी एक होता है. एंड अक्षय कुमार ऐसा मन में सोच रहा होता है, एक क्या मतलब पकड़ करता रहता है, ये तो सोचता भी अंग्रेजी में होगा. And that's what the idea is, कि we have to start thinking in English in the long run. धीरे धीरे होगा, जल्दी करोगे इस पे तो then you'll make it harder for yourself. So long term you have to start this process of thinking in English. The second thing that I want you to keep in mind is UPSC relevance. Now a lot of people from this channel who watch this video, who will probably watch this video, are somewhere or the other preparing for civil services exam. And इंग्लिश जस्ट रैंडमली हमें इंप्रूव नहीं करना है, हमें इंग्लिश फॉर एक पर्टिकुलर पर्पज इंप्रूव करना है, विच इज़ सिविल सर्विसेज एग्जाम में आई हैव टू एस. सो लुकिंग एट टॉपर कॉपीज सच एज पीपल लाइक श्रुति शर्मा और विक्रम ग्रेवाल और अनुदीप दुरिशेट्टी, looking at how they are writing answers in the long run is going to be very helpful for you, because it will help you understand कि UPSC का क्या requirement है and how do I improve my skills to that extent. ये 1 महीना जो मैं बोल रहा हूँ, this is just to help you get started with the journey. The journey is going to be lifelong. Even now मतलब I consider कि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, बट मुझे भी सीखने के लिए 10 चीज़ और हैं कि भाई और बेटर मैं कैसे लिख सकता हूँ, और बेटर मैं कैसे बोल सकता हूँ. तो लर्निंग एंड इम्प्रूविंग एंड ग्रोथ इज़ अ जर्नी दैट इज़ एंडलेस. एंड ग्रोथ माइंडसेट अगर आप एक रखते हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दैट यू बिकम कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल. हमेशा अपने कंफर्ट जोन को पुश करो, अपनी बाउंड्रीज को पुश करो, हमेशा कोशिश करो वो चीज़ करने की जो अच्छी नहीं लग रही है अभी या जो मुश्किल लग रही है अभी, क्योंकि वहीं से आपको ग्रोथ आएगा. एंड आई विल एंड दिस वीडियो बाय सेइंग अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आप वही चीज़ करते रहोगे जो आपने हमेशा करी है, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स जो आपको हमेशा मिले हैं.
कुछ डिफरेंट अचीव करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है. एंड दैट्स ऑल दैट आई हैड टू शेयर टुडे. ऑल द बेस्ट.